Hello student, how are you? I hope you all are very fine. Now student, in chap SS chapter 2, what is around us? Okay, so we have learned different sphere of the earth. So let's recap what we learn. चलो हम देखते हैं कि हमने क्या पढ़ा. बाद में जो बाकी है वो देखेंगे. First of all student, the earth is a member of the solar system as we know very well. And among all members of the solar system, only earth has got suitable temperature, air and water required to sustain life. Okay, only solar system में only earth ही ऐसा एक planet है जो उसको suitable temperature, air and water required है. एंड स्टूडेंट, देर आर 4 स्फीयर्स ऑन अर्थ. अर्थ पे कितने स्फीयर है? टोटली 4 स्फीयर. ओके, दैट इज द लिथोस्फीयर. फर्स्ट वन कौन सा है? लिथोस्फीयर. सेकेंड वन इज हाइड्रोस्फीयर एंड द थर्ड वन इज एटमोस्फीयर एंड फोर्थ वन इज बायोस्फीयर. नाउ स्टूडेंट्स, we already learned about the lithosphere, hydrosphere and atmosphere. Okay, then also today I am going to uh, tell you something about these 3 sphere also, and then I will start the biosphere. Now student, first of all lithosphere. Okay, lithosphere क्या है? That is the solid part on which we live is known as the lithosphere. Okay, and this layer occupies about 29% of the surface of the earth and is almost 64 किलोमीटर to 100 किलोमीटर थिक. ओके, लिथोस्फीयर वो सबसे ज़्यादा हार्ड एंड थिक स्फीयर है. ओके, और उस वो लेयर को कितनी स्पेस चाहिए, कितनी ऑक्यूपाई वो करता है? 29% of the surface of the earth and it is almost 64 kilometer to 100 kilometer thick. Now student, what we will find in this lithosphere? So landsform like mountains, plateaus, plains, valleys etc are seen on the lithosphere. Okay, lithosphere में हमें क्या क्या मिलता है? प्लेट्यूस, प्लेन्स, वैलीज, माउंटेन्स. ओके, वो मिलता है. एंड एज वी move towards the center of the earth the temperature increase. ओके, और जैसे ही हम अर्थ के मिडल में जाते हैं, सेंटर में जाते हैं, ओके, तो टेम्परेचर वहाँ का कैसा होता जाता है? इंक्रीज मीन्स बढ़ता जाता है. नाउ स्टूडेंट, सेकेंड स्फीयर दैट इज द हाइड्रोस्फीयर. एंड हाइड्रोस्फीयर किसके फॉर्म में हमें मिलता है? लिक्विड फॉर्म में. ओके, द लिक्विड कंपोनेंट ऑफ द अर्थ इट इज कॉल्ड द हाइड्रोस्फीयर एंड इट इंक्लूड्स ओशियंस, सीज, बेस, स्ट्रेट, लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स एक्सेट्रा. ओके, उसमें जो पानी के जो स्रोत होते हैं, ओके, मेन सोर्सेस वो हमें मिलता है. As we know, lake, ponds, river, they all are the sources of water and the hydrosphere cover about 71% of the earth's surface. Okay, hydrosphere है वो टोटल कितने परसेंटेज हमारी अर्थ को कवर करता है? 71% and rest of the land form. Okay.
Now student, the third sphere, that is the atmosphere, and the sphere of air that wraps the earth from all sides is called atmosphere, and it extends up in the about 1600 kilometer from the surface of the earth, and it cannot be seen clearly with the naked eye. Okay, atmosphere we can't see from our naked eye. Okay, and we can find this the different kinds of gases in this atmosphere. Various gases like nitrogen, oxygen, carbon dioxide, ozone, hydrogen, water vapor, dust particles, smoke, salt particles, microorganism, etc., and make up the atmosphere, which is the colorless, odorless, and the transparent. And student, atmosphere contains about the 78 percentage of nitrogen, 21 percentage of the oxygen, and 1 percentage of the other gases. So students, now you very clear about this lithosphere, hydrosphere, and atmosphere. Now I am going to tell you something about the last sphere, that is the biosphere. See students, here biosphere, the part of lithosphere, hydrosphere, and atmosphere where the living world exists is known as biosphere. Okay, lithosphere, hydrosphere, and atmosphere है. ओके, और ये जो बायोस्फीयर है दैट इज द लिविंग थिंग. ओके, नॉन लिविंग थिंग एज वेल एज नॉन लिविंग थिंग, दोनों पार्ट में वो डिवाइडेड किया गया है. नाउ बायोस्फीयर इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट स्फीयर्स ऑन अर्थ. नाउ स्टूडेंट्स, हियर बायोस्फीयर है वो सबसे इम्पोर्टेंस. ओके, अर्थ पे जो चारों स्फीयर है उसमें से बायोस्फीयर दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट स्फीयर ऑन द अर्थ. And Earth is the only planet in the solar system having biosphere. और सोलर सिस्टम में अर्थ ही एक ऐसा प्लानिट है, ओके, जिसके ऊपर ये बायोस्फीयर है. नाउ बायोस्फीयर इंक्लूडिंग वेजिटेशन, एनिमल्स, इंसेक्ट्स एंड ह्यूमन बींग्स. नाउ स्टूडेंट सी, बायोस्फीयर में क्या क्या इंक्लूड है? वेजिटेशंस, ओके, एनिमल्स, इंसेक्ट्स एंड ह्यूमन बीइंग. बायोस्फीयर में वेजिटेबल्स भी है, एनिमल्स भी है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंसेक्ट भी है, और ह्यूमन बीइंग्स भी हैं. स्टूडेंट्स, नाउ लिसन, हमें खाना है, ओके, तो हम क्या करेंगे? फूड ही खाएंगे, वेजिटेबल्स खाएंगे, फ्रूट्स खाएंगे. ओके, तो ये सब कुछ हमें कहाँ से मिलेगा? बायोस्फीयर्स में मिलेगा. ओके, और वो सब हमारे लिए कौन उगाता है? फार्मर. तो see students, here we obtain food and many other necessary things from biosphere. ओके, हाँ, हमें बायोस्फीयर में से क्या क्या मिलता है? फूड तो मिलता है, and more any other necessary things also we are getting from the biosphere. Now students, do you know if we will not eat one day, then what happen? एक दिन हम ना नहीं खाएंगे तो क्या होगा? दूसरे दिन हमें ज़्यादा भूख लगेगी, अदरवाइज हमारी जो एनर्जी होगी वो कम हो जाएगी, हम थक जाएंगे. ओके, सो स्टूडेंट, वी कैन नॉट लिव विदाउट द वेजिटेशंस एंड एनिमल्स. ओके, बायोस्फीयर इज द बेस ऑफ द एक्सटेंस ऑफ एंड लिविंग. एंड बायोस्फीयर है दैट इज द लिविंग थिंग के लिए एक बेस है, एक रूट है. एंड इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. मैंने पहले ही आपको बोला कि बायोस्फीयर है कितने पार्ट में डिवाइड किए गए हैं? दो पार्ट में. दैट इज, वन इज द नॉन लिविंग थिंग. ओके, एक है नॉन लिविंग थिंग एंड सेकेंड वन इज द लिविंग थिंग. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, हियर lithosphere, hydrosphere and atmosphere form the non-living part. ओके, लिथोस्फीयर है, हाइड्रोस्फीयर है, एटमोस्फीयर है, वो नॉन लिविंग पार्ट है. ओके, वाइल्ड प्लांट्स, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर इंक्लूडिंग इन द लिविंग वर्ल्ड. यहाँ पे प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसेक्ट, ट्रीज, वो सब कुछ क्या है? लिविंग फॉर्म में आता है, लिविंग थिंग में आता है. एंड आगे के हमने जो तीन स्फीयर देखे, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमोस्फीयर,
वो क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, मीन्स नॉन लिविंग पार्ट है, एंड रेस्ट ऑफ द लिविंग पार्ट है. नाउ see student, if man harms the earth by his activity, then do you think it will affect these spheres? Now student see, हमने ये चारों स्पीयर देखे, ओके और हम मैन मीन्स ह्यूमन बीइंग, हम खुद ये चारों स्पीयर को हमारी एक्टिविटीज से डिस्ट्रॉय करेंगे, ओके तो क्या ये चारों डिस्ट्रॉय करेंगे, अदरवाइज ये चारों स्पीयर को हार्म करेंगे, ओके हर्ट करेंगे, तो ये चारों स्पीयर पे इफेक्ट होगी कि नहीं होगी वो हम देखते हैं. यू कैन सी इन दिस डायग्राम, ये डायग्राम में आप देख सकते हो, ओके. नाउ स्टूडेंट सी, सबसे पहले मैं आपको बोल रही हूँ कि ये जो स्मोक है, ओके स्मोक क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, ओके वो स्मोकिंग फैक्ट्री के थ्रू भी आता है, ओके देन व्हीकल्स, रोड पे जो व्हीकल जाते हैं उसमें से भी स्मोक निकल, तो वो हमारे एटमॉस्फेयर से क्या करता है, एटमॉस्फेयर को वो हार्म करता है, ओके हम जोर जोर से म्यूजिक बजाते हैं, ओके उससे भी हमारे एटमॉस्फेयर को हार्म होता है, ओके अगर हम ट्रीज काटते हैं, ओके प्लांट्स को हर्ट करते हैं, ओके तो भी हमारे एटमॉस्फेयर को हार्म होता है, हमें ज़्यादातर रेन नहीं मिलती है, रेन नहीं मिलती तो हमारे लिए फूड नहीं बनता है, ओके मीन्स फार्मर जो है हमारे लिए फूड नहीं उगा पाते, ज़मीनें नहीं होगी, ट्री नहीं होगा तो कैसे हमें फूड मिलेगा. Now student, I want to tell you one important thing. We should save our environment. Okay, हमें हमारा environment को बचा के रखना है. Okay, अगर हमें उसको सेफ रखेंगे, बचा सेव रखेंगे, okay, तो definitely हमारी लाइफ भी सेव होगी. तो now student, at last I am going to tell you that these four spheres are very important in our life. Okay, so we have to take care of this all the spheres, okay we have to not to harm to them, okay so student, I hope you all very understood in this lesson. Now behind this text some exercise is there, so you have to solve it, आपको वो exercise solve करनी है. Thank you very much student.